Good morning, बच्चों. Welcome to online classes for mathematics. This is Gaurav Kumar, your maths teacher. As you know that we are studying the chapter for understanding quadrilateral. In this chapter, we are studying exercise 3.3. I took question number 8, and this is very important question of this exercise. Here we shall discuss both the parts of this question. In this question, both you can see that two quadrilaterals are given, and particularly these quadrilaterals are parallelogram. Okay, we solve first part of this question. That is, a quadrilateral is given, that is G, U and S guns, and this quadrilateral is a parallelogram. So when we started this exercise, we discussed many properties of a parallelogram, and one of the properties of parallelogram is that opposite sides are equal. जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं साइड्स में जो पैरेललोग्राम की है, पहली ही प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स जो है पैरेललोग्राम की वो क्या होती हैं, इक्वल होती है. वी यूज दैट प्रॉपर्टी. सो जी यू इज इक्वल टू एस एन बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल. जी यू इज इक्वल टू 3y minus 1 and एस एन इज इक्वल टू 26. So simply we have to solve it because we have to find the variables. That's the value of xy in both the cases. So we have to solve this equation for y. So 26 plus 1, 3y is equal to 27. So here you can see that y is equal to 27 upon 3. So y becomes 9. y क्या बन जाता है? 9 बन जाता है. ठीक है. Similarly with the same property, SG is equal to UN. बच्चों हम ध्यान रखना, जो पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है वो याद रखनी होती है हमें. उसका यूज करके ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो SG is 3x and n या UN is 18. So simply x becomes 18 upon 3 which gives x is equal to 6. तो हमारा जो y आ जाता है वो 9 आ जाता है और x आ जाता है वो 6 आ जाता है. ठीक है. तो आप इसे देख लें, समझ लें. Now we start the solution of the second part. In the second part, you are given a quadrilateral R, U and S runs, and this quadrilateral is also a parallelogram. So another property of a parallelogram about diagonals. What does this property say about the diagonals of a parallelogram? This property says that diagonals of a parallelogram bisect each other. Diagonals जो होते हैं parallelogram के वो क्या करते हैं? They bisect each other, यानी कि एक दूसरे को बराबर दो भागों में बांटते हैं. तो diagonal क्या है? S U और R N, और ये दोनों अपने आप को क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सपोज इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? O बोल देते हैं. So it shows with the help of this property RO is equal to ON. RO is equal to ON. So we can say ON is equal to XY is equal to 16. We can say it first equation. Similarly, SO is equal to OU. SO is equal to OU. Y plus 7 is equal to 20. We can call it second equation. So solving second equation, y becomes 20 minus 7, that is y is equal to 13. So y की वैल्यू आ जाती है 13. Putting this value y is equal to 13 in first equation, and first equation gives x plus 13 is equal to 16. So x becomes 16 minus 13. So x is 3. X is 3. So here you can see that x comes out to be of 3 and y becomes 13. So in this way these two questions are solved with the help of properties of a parallelogram. ठीक है बच्चों. अब हम इसका एक क्वेश्चन और करते हैं. इसका क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं. That is also very important. Okay बच्चों, this is the
question number 9 of this exercise. That is very important question. It has come in the examination many times. Every year it comes in every examination for 8th class. Okay, this is very important question. So keep it in mind. Here you can see that RLUK. From the figure it is clear and it is given also. RLUK is a trapezium. Why? Why you know that the one pair of opposite side is parallel. The definition is trapezium. Definition is the trapezium क्या है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ये ट्रेपेजियम दो पैरेललोग्राम्स में डिवाइडेड किया हुआ है। वन पैरेललोग्राम इज RISK रिस्क and another parallelogram is CLUEQ. I think it is visible to all of you. तुम सब देख पा रहे हो उसको। And in this figure we are asked to find the value of x. x की वैल्यू निकालने के लिए हमें कहा गया है। तो बच्चों हमें इसमें पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि एंगल्स गिवन है, तो एंगल्स की प्रॉपर्टीज ही हमें यूज करनी है। जो हमें साइड्स में क्वेश्चन पूछता है देन वी हैव टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ साइड्स अबाउट अ पैरेललोग्राम। अब एंगल्स की बात आए तो एंगल्स की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, ये छोटा सा आप ध्यान दें जिसमें डार्क कर रहा हूं बच्चों, ये ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में एक्स मुझे निकालने के लिए कहा गया है। अगर मैं किसी भी तरह से ये निकाल पाऊं, दैट इज एस एंगल निकाल पाऊं और ई एंगल निकाल पाऊं, तो ई प्लस एस प्लस एक्स बिकम्स 180 बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि मैं ई निकाल लूँ और एस निकाल लूँ किसी तरह से। अगर मैं ई और एस निकालने में कामयाब हो जाता हूँ तो यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आई विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ई और एस और भी तरीका हो सकता है इसका निकालने का, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो यही तरीका आ रहा है। आप किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तरीका लॉजिकल होना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब लेकिन मेरा पूरा फोकस रहेगा, आई विल फोकस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ई एंड एस। नाउ यू कैन सी इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है बच्चों, ये सिंबल जो है पैरेललोग्राम का। इन पैरेललोग्राम RISK हम देखते हैं कि एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 होता है। क्यों? क्योंकि बताया गया था जितनी जो एडजेसेंट एंगल्स हैं दे आर सप्लीमेंट्री। एंगल्स की प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की एंड इट सेज दैट द एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि उनका सम जो है 180 होता है। तो K की वैल्यू है 120 प्लस S इज इक्वल टू 180, सो S बिकम्स कितना 180 माइनस 120 दैट इज x इज 60। S तो हमारा 60 आ गया। अगेन इन पैरेललोग्राम CLUE क्लू जो पैरेललोग्राम है इसमें भी अगर हम देखें एंगल L इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा। क्यों? मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, L और E बराबर होंगे बिकॉज वी नो दैट अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो एंगल E भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? एंगल L के बराबर हो जाएगा और एंगल L है 70। तो मैंने यही कहा था कि E और S अगर मैं निकाल पाऊँ तो विद द हेल्प ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, using I can find the value of x using angle sum property of a triangle E plus S plus x is equal to 180. Simply I can say
E is equal to 70 एंड S इज इक्वल टू ये है हमारा 60 प्लस x इज इक्वल टू 180. So here x plus 130 is equal to 180. X becomes 180 minus 130. It gives x is equal to 50. तो बच्चों x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 50 आ गई. In this way this question is solved. मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा. तो ये दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. ठीक है, इन क्वेश्चंस को करें और इस एक्सरसाइज के सभी बचे हुए क्वेश्चन करें. आप लोगों को जो कुछ समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं. ओके बच्चों, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय.